Now, in the last class, I had shown you how to write a simple program in C. ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा था सी लैंग्वेज के सम इंट्रोडक्शन अबाउट सी लैंग्वेज, देन सी मतलब कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और उसमें प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं, एंड देन आई गेव यू अ डेमो हाउ यू कैन राइट एंड रन अ प्रोग्राम इन सी. तो मैंने कई सारे मेथड्स बताए थे आपको. इफ यू हैव अ पीसी और अ लैपटॉप एट होम, then you can install Borland C++ or Turbo C++ in it, and you can run your program there. And अगर आपके पास पीसी नहीं भी है तो भी आप कई सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स अवेलेबल हैं on the net, so you can just search out a an online C compiler on Google, and you can use any one of them. They are equally good. मैंने आपको पिछले बार दो तीन जो कॉमनली यूज्ड ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं उनको उनमें प्रोग्राम लिख करके रन करना आपको दिखाया था. One of them was GCD, one was Code Chef, and उसके अलावा भी कई सारे compilers available हैं. So you can write program and run your program wherever you feel comfortable. Okay, तो last class में हमने एक छोटा सा program लिखा था just to print a simple word on the screen, a hello program on the screen. So that is the most basic program that you can write in C. Now the objective of that program was just to show how you can write a more simple program in C. And normally ऐसा program हम usually कभी भी नहीं लिखते, लेकिन कभी भी कोई आप language सीखते हो for the first time. So the first program you write in any language is you just display a hello message kind of thing, and try to write and run a program जिससे आपको उस environment में काम करने का एक idea लग जाता है. ठीक है. In that I also discussed how you can give comments, what are comments, why comments are given, comments किस लिए use होते हैं. So we discussed about two types of comments. One is single line comment. Comments can be of two types: single line comment and multiple line comment. Single line comment. कमेंट किस लिए यूज होते हैं ये आपको अब क्लियर हो चुका है. Comments document your program. So there are two types of comments. One is single line and second is multi-line comment या multiple line comment. ठीक है. अब अगर आपको काफी लंबा सा, suppose you want to describe the logic of a program and it is of 3 to 4 lines, then what you can do is you can start your comment with these two characters. Now the order of the character should be same. ये जो order है, स्लैश के बाद एस्ट्रिक का साइन लगा होना चाहिए. उसके बाद आप जो भी कुछ लिखोगे इट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट. मतलब एक बार आपका स्लैश एंड एस्ट्रिक का साइन जैसे ही कंपाइलर को मिलेगा, इट विल नो कि दिस इसके आगे का जो भी मटेरियल है, जो भी टेक्स्ट है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट बाय द कंपाइलर. इट विल इग्नोर दैट टेक्स्ट until it finds this set of character again. Now in this case the asterisk comes first and then the slash comes. तो इसके बीच का जितना भी सारा मटेरियल है, टेक्स्ट है, that is treated as a comment. So this is a multiple line comment. एक से ज्यादा लाइन का अगर हमें कमेंट देना है then I can give it in this way. और अगर हमें सिर्फ एक ऐसा कमेंट देना है जो सिर्फ एक लाइन का ही है या मिडिल ऑफ द लाइन में भी आपको देना है, एंड ऑफ द लाइन में, सो यू कैन जस्ट स्टार्ट अ सिंगल लाइन कमेंट विथ दीज टू कैरेक्टर्स. दो डबल स्लैश लिखने के बाद whatever you write is treated as a comment. Suppose I write this is a comment. तो जैसे ही कंपाइलर को ये दो कैरेक्टर्स लगातार मिल जाते हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस वन आफ्टर द अदर, देन वहां से लेकर के till the end of the line, the entire text till the end of the line is treated as a comment. So these are the two forms of comment. One is the single line comment and the second is multiple line comment. अगर आपका 4-5 लाइन्स का कमेंट देना है या 8-10 लाइन का कमेंट देना है,
देन बार बार आप इस तरह से लिख करके इट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस मेथड, द सेकंड मेथड. ठीक है. और अगर आपको सिर्फ एक लाइन का कमेंट देना है देन यू कैन यूज द सिंगल लाइन कमेंट. सो दिस वाज रिगार्डिंग कमेंट. देन हमने एक printf फंक्शन डिस्कस किया था. printf फंक्शन इज टू डिस्प्ले समथिंग ऑन अ स्क्रीन. नाउ सी, कभी भी कुछ भी आप करते हो तो प्रोग्राम लिखते हो तो आपका ज्यादातर कोई भी प्रोग्राम होगा, इट विल टेक सम इनपुट, इट विल प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस सम आउटपुट, है ना. जो हमने आईपीओ साइकिल डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, whenever you write a program is written to convert the input into output. And how does that happen? Some processing takes place in the middle and which converts the input into output, or you can say it converts the data into information. So data when processed becomes information. Data is raw facts and information क्या होती है? Processed data is known as information. और ये processing कौन करता है? We do it through our programs. ठीक है. Programs हम किस लिए लिखते हैं? To do the processing thing, to make the task easier. ठीक है. Now computer क्यों use करते हैं हम? You know very well, क्योंकि computer एक ही काम को बहुत फास्ट और बहुत सिंसियरली, डिलीजेंटली एंड एक्यूरेटली कर सकता है एंड इट विल गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट्स एवरी टाइम. ठीक है. तो अगर आपको कोई काम बहुत बार कराना है तो आप उसके लिए एक बार प्रोग्राम लिख करके रख देते हो, then you can run that program n number of times and every time that program will go give you the right results. ठीक है. So this was all about अभी तक जो भी हमने पढ़ा था सी के बारे में. Now we'll proceed further. Now हम देखेंगे आगे लैंग्वेज में और क्या क्या चीजें, and we'll try to write some more programs in it. ठीक है. Now लैंग्वेज के, हर लैंग्वेज के अपने कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मिल करके लैंग्वेज बनाती हैं. Suppose if we talk about the English language, then English language में you have alphabets from A to Z, you have alphabets from small a to Z. ठीक है. तो ये सब फिर फुल स्टॉप, कॉमा, सम स्पेशल कैरेक्टर्स, एक्सक्लेमेशन, ये सारे भी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं. ठीक है. तो दिस फॉर्म्स द इंग्लिश के कोई भी वर्ड्स मिल करके बनेंगे या सेंटेंसेस, वो इन कैरेक्टर्स से और इन स्पेशल कैरेक्टर्स से मिलके बनते हैं. देन उसके अलावा क्या होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक सेट होते हैं. जैसे आप कह सकते हो वोकैबुलरी, वोकैब होती है हर लैंग्वेज. डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स मेंशन है इंग्लिश में, इंग्लिश डिक्शनरी में, दे बिलोंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. तो वो लैंग्वेज के बारे में, मतलब दे आर द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो इसी तरह से सी लैंग्वेज का अपना एक कैरेक्टर सेट भी होगा. सी लैंग्वेज के अपने कुछ वर्ड्स भी होंगे जिन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स. ठीक है. सो ऑल दोस थिंग्स वी विल बी सीइंग वन आफ्टर द अदर. नाउ सबसे पहले द कैरेक्टर सेट. मतलब जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे सी में तो इट विल बी, मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कीबोर्ड से कैरेक्टर्स की मदद लेनी पड़ेगी. एंड हाई लेवल लैंग्वेज, इफ वी टॉक अबाउट बाइनरी लैंग्वेज, जब मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, देन ओनली 2 कैरेक्टर्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग सच प्रोग्राम्स एंड दैट वेर 0 and 1. तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज का देखा जाए जो कैरेक्टर सेट था, it only included 2 characters, 0 and 1. और कोई कैरेक्टर्स को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था, वो ओनली zeros and ones से मिलकर के सारा प्रोग्राम लिखा जाता था. So this was the only character set of the machine language. Then assembly language आई. assembly language में आपके mnemonic codes यूज हुए, तो वहां पे आपके अल्फाबेट्स यूज होने लगी. जैसे आपके कुछ mnemonic codes like load, store, add, say, subtract. अब इन सब में कैरेक्टर्स क्या यूज हो रहे हैं? ये वही इंग्लिश के A to Z कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं. सो दोज आर नोन एज द कैरेक्टर सेट. मतलब जिनसे मिल करके आप प्रोग्राम बनाते हो, जिन कैरेक्टर्स को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सपोर्ट करती है या रिकॉग्नाइज करती है, दैट इज नोन एज इट्स कैरेक्टर सेट. नाउ
यहाँ पे the C characters are grouped into the following categories: letters, digits. तो letters में क्या क्या आ जाएंगे? कैपिटल A से लेके Z, स्मॉल a से लेके Z. These come in the letters category. Digits में आपके क्या आ जाते हैं? 0 से लेके 9. And इसके अलावा some special characters are also allowed. स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके? स्पेशल कैरेक्टर्स में एम्परसेंट से एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, प्लस, माइनस एंड से सेमीकोलन, कोलन, कर्ल ब्रैकेट. ऑल दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सी लैंग्वेज. एंड इसके अलावा वाइट स्पेसेस. वाइट स्पेसेस जैसे इंग्लिश में बिल्कुल वैसे ही आप वाइट स्पेसेस का यूज सी में भी करते हैं. टू सेपरेट टू वर्ड्स यू हैव टू सेपरेट देम विद अ स्पेस. तो अदरवाइज वो दोनों वर्ड्स मिक्स अप हो जाएंगे. तो इंग्लिश में भी दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यू रिक्वायर अ वाइट स्पेस इन द मिडल. तो वाइट स्पेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैरेक्टर दैट इज अलाउड इन द सी लैंग्वेज. तो मीन्स जो सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट है, इट इज मेड अप ऑफ A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 स्पेशल कैरेक्टर्स एंड वाइट स्पेस. ये सब मिल करके दे फॉर्म द कैरेक्टर सेट ऑफ द सी लैंग्वेज. ठीक है, अब ये यहाँ पे सारा आपका दिया हुआ है. केस A to Z, लोअर केस A to Z, all decimal digits from 0 to 9, and these are the list of special characters. और ये आपकी white spaces है. So this is the complete character set that is supported by the C language. Now इसके अलावा there are certain tokens also, C tokens. In a passage of text, individual words and punctuation marks are called tokens. Similarly, in a C program, the smallest individual unit is known as a token. जैसे कि एक प्रोग्राम कई सारे वर्ड से मिलकर के बनता है, तो इंग्लिश में जैसे हम उसे वर्ड बोलते हैं, तो सिमिलरली सी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो, इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ टोकन्स. मतलब वो जिनसे मिलकर के बनता है उनको हम बोलते हैं टोकन. एंड टोकन, सी के टोकन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज. दे कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ कीवर्ड. वी विल डिस्कस देम ऑल वन बाय वन. They can be constants, they can be strings, they can be operators, they can be identifiers or variables, and they can be special symbols. ठीक है, we will discuss them all one by one. तो C tokens comprise of all these things. ठीक है, अब इनमें से हम string पढ़ चुके हैं. You know what is a string. I told you anything that is enclosed within double quotes and contains one or more character is known as a string. So hello is a string, say GTBPI is a string. So a collection of characters enclosed within double quotes is known as a string. So this is also one of the token that is available in C. इनको token बोलते हैं. ठीक है, फिर इसके अलावा ऑपरेटर्स ऑल्सो फॉर्म टोकन. ऑपरेटर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. अभी फिलहाल के लिए मैं बता दे रही हूँ, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ये चार आपके बेसिक ऑपरेटर्स हैं विच आर यूज्ड टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स. ठीक है, जो सबसे बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं चार, वो यही होती हैं. आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे आगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मेनी मोर. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट होते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स आर समथिंग जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. ओके, सो सपोज इफ आई से 10 is a constant, it is an integer.
इंटीजर वैल्यू है ये, इसमें कोई डेसिमल ना। नंबर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स दो तरह के हो सकते हैं ब्रॉडली, मैथ में भी हमने पढ़े हैं। तो दे कैन बी इंटीजर नंबर्स एंड दे कैन बी रियल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जैसे अगर आपने कहा 3.14, दिस इज अ रियल नंबर। एंड अगर आपने कहा 7, इट इज अ इंटीजर, जिसमें डेसिमल और उसके बाद भी मतलब प्रिसिशन होता है, दैट इज नोन एज अ रियल नंबर। और इंटीजर्स इंटीजर्स में आपका देयर इज नो डेसिमल, देयर इज नो वैल्यू आफ्टर द डेसिमल, देयर इज नो डेसिमल इन फैक्ट, ठीक है। तो नंबर्स आपके ये दो तरह के हो सकते हैं। नाउ अगर हम बोल रहे हैं 10, दिस इज अ वैल्यू and this value is fixed, so this is known as a constant. Constant का मतलब क्या होता है? कोई चीज, कोई वैल्यू जो बदलती नहीं है, that is constant, ठीक है। variable and constant, there are two things. variable का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है from time to time, whose value can change is known as a variable. and constant क्या होती है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो वैल्यू फिक्स्ड है जिनकी, तो उनको कहते हैं कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है या होती रहती है, दैट इज अ वेरिएबल। सो इफ 10 या 3.14 या इफ आई से 100, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स, क्योंकि से ये वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज कांस्टेंट्स। इन सबको और डिटेल, स्पेशल सिंबल्स तो ठीक है हम पढ़ ही चुके हैं। स्पेशल सिंबल्स, बहुत सारे स्पेशल है सी लैंग्वेज में। नाउ टॉकिंग अबाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड्स आर द, यू कैन से बिल्डिंग, जैसे एक सेंटेंस को बिल्ड करने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है, और वो वर्ड्स लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज में भी देयर आर सर्टेन वर्ड्स, बट द लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज वेरी लिमिटेड। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप डिक्शनरी में देखोगे जितने वर्ड्स डिक्शनरी में हैं, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और समय के साथ वर्ड्स ऐड भी होते रहते हैं एंड दे गेट एडेड इनटू द डिक्शनरी आल्सो। बट जो सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं, सी इज मतलब सी इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स। मतलब देयर आर जस्ट, यू कांट इमेजिन इतनी पावरफुल लैंग्वेज होने के बावजूद उसमें सिर्फ 32 कीवर्ड्स होते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ अ लैंग्वेज, इतनी पावरफुल लैंग्वेज इतने सालों से चलती आ रही है, यूज होती आ रही है, एंड इट जस्ट वर्क्स ऑन 32 कीवर्ड्स। मतलब देखा जाए 32 बस कमांड्स हैं जिन पे लैंग्वेज चलती है। सो इट्स मतलब सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इट्स देयर। सो देयर आर ओनली 32 रिजर्व कीवर्ड्स जो हम, जिनको यूज करके हम अपने सेंटेंसेस या अपने स्टेटमेंट्स बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर। सो जस्ट 32 ऑफ देम, सम ऑफ देम आर लाइक व्हाइल, बिल्कुल इंग्लिश वाले वर्ड्स जैसे होते हैं, फॉर, इफ, देन, एल्स, these all are reserved keywords of C, float, int, double. So ऐसे इन सबको मिला करके there are 32 keywords in all, बस। उसके अलावा C में you may think कि 32 कीवर्ड से, 32 कीवर्ड से आप इतने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स कैसे लिख सकते हो? 32 इज नॉट अ वेरी बिग फिगर, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में इतने सारे वर्ड्स हैं, पर सी लैंग्वेज में सिर्फ 32 वर्ड्स की मदद से हाउ कैन वी राइट सच बिग सॉफ्टवेयर्स? I told you the Unix operating system itself is written in the C language. So you can imagine the power of C language कि C language में क्या-क्या कितने सारे operating systems लिखे गए हैं। And the best example is Unix. 90% of Unix operating system is written in C language, and with just 32 keywords and all. So the reason is the main power of the C language resides in the functions. C language में कहने को keywords सिर्फ 32 हैं, लेकिन it is very rich in functions. It has a variety of functions. पहले से उसमें बने हुए inbuilt बहुत सारे functions हैं, और आपको बस
उन फंक्शंस को यूज करना होता है प्रोग्राम में, एंड दो यूजिंग दोस फंक्शंस इन योर प्रोग्राम मेक्स योर प्रोग्राम मेक्स इट इजी टू राइट अ प्रोग्राम. ठीक है, क्योंकि से काफी चीजें जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो पहले से आपको करी हुई मिल जाती हैं, आपको बस उन फंक्शंस को यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर. सो जस्ट 32 keywords are there in the C language. Then there are certain identifiers. Identifiers को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. What are identifiers and उनकी हमें क्या जरूरत पड़ती है. So this I have already discussed. Keywords मैंने आपको बताया. This is the complete list of 32 keywords that are available in C language. ठीक है, ये these are limited to just 32 of them. जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे C में, we will just use any मतलब just we will use these keywords to write a program, और इसके अलावा हम कुछ functions का use करेंगे and we can write lot many programs in the language. Now identifiers क्या होते हैं? Identifiers are meant for identifying a thing. मतलब जैसे suppose एक why are we assigned a name? हमें नाम से क्यों, मतलब हर पर्सन को एक नाम दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? जस्ट टू डिफरेंशिएट दैट पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन. ठीक है, अदरवाइज अगर कोई नाम नहीं होगा तो कैसे आपको लोग बुलाएंगे या कैसे वो आपको एड्रेस करेंगे. सो सिमिलरली आइडेंटिफायर, जैसे अगर हम सी में बात करें तो सी में बहुत सारे फंक्शंस बनाए जाएंगे, तो फंक्शंस को हमें नाम देना पड़ेगा कि ये फंक्शन इसके लिए है, ये फंक्शन इस काम के लिए है. सो वी हैव टू असाइन अ नेम टू अ फंक्शन. वी मे हैव टू क्रिएट वेरिएबल्स को भी हमें नाम असाइन करने पड़ सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. सो कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए you have to assign a name to that thing and it is known as the identifier. ठीक है, तो जो नाम आप देते हो किसी फंक्शन को या वेरिएबल को जिससे वो उसे बाकियों से अलग करता है, that is known as an identifier. और आइडेंटिफायर के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उसको नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, so there are certain rules which have to be followed while naming an identifier. So these are the rules that have to be followed while naming an identifier. Now before that, one thing should be known, that C is a case sensitive language. C language is a case sensitive language. Case sensitive language का मतलब क्या होता है कि it differentiates between small a and capital A. मीन्स अपर केस में ए, अगर आपने कुछ लिखा सपोज हेलो या आपने लिखा हेलो, ऐसे दोनों डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम. ठीक है, या अगर हमने लिखा एक वेरिएबल का नाम ए और एक वेरिएबल का नाम लिखा कैपिटल ए, दे आर नॉट सेम, दे आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट नेम्स. ठीक है, जस्ट बिकॉज C language is a case sensitive language, it differentiates between uppercase and lowercase letters. उसके लिए uppercase letter और lowercase letter same नहीं है. Most of the languages are case sensitive, very few languages are not case sensitive. ठीक है, now HTML and basic languages are not case sensitive. So this I'm just telling you because ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हर लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव होती है. जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, C इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. Most of the languages are case sensitive, means they differentiate between an uppercase and a lowercase. But still there are certain languages that do not differentiate between the, so it will not matter. Same is the case with basic. Okay, so talking about C, it's a case sensitive language, so you have to be very specific. आप ये नहीं सोच सकते हो कि अगर आपने ABC लिखा और कैपिटल में ABC लिखा तो ये बात तो वही है.
ऐसा नहीं है, both the things will be treated as different. So the both uppercase and lowercase letters are treated as different in C language. Now the rules for keeping a name, जैसे नाम हमें किसी भी वेरिएबल का या फंक्शन का नाम रखना है, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं. आइडेंटिफायर का को नेम देते समय व्हाट रूल्स हैव टू बी केप्ट इनटू द माइंड. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, यू शुड नो. At times the question comes ki what are the rules for naming an identifier, yeah, what are the rules for naming a variable in C. Then you have to write these points. The first is the first character must be an alphabet or an underscore. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वेरिएबल का नाम ABC रखा, it is correct. If you have kept it as ABC, this is also correct. आपने पूरा तीनों कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, वो भी करेक्ट है. बट इफ यू हैव केप्ट द नेम ऑफ अ वेरिएबल एज 9ABC, मतलब पहला कैरेक्टर आपने क्या दे दिया, डिजिट, देन दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल, नॉट वैलिड आइडेंटिफायर. ये तीन वैलिड हैं, ये वैलिड नहीं है. और क्या वैलिड नहीं है इसमें? 9 is a digit and the first rule says the first character of an identifier should be an alphabet or an underscore. ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है. अगर आप वेरिएबल का नाम ये रखते हो, ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर का साइन ये होता है, followed by 3 alphabets, this is correct, this is a valid variable name. If you keep this is also valid, बीच में अंडरस्कोर लगा दिया, सारे बाकी अल्फाबेट्स हैं, so all these are allowed, only this is not allowed. And the rule is because यहाँ पे पहला कैरेक्टर जो है वो डिजिट है, जो कि अलाउड नहीं है. फर्स्ट प्लेस पे या तो अल्फाबेट होना चाहिए, चाहे वो अपर केस हो या लोअर केस हो या फिर अंडरस्कोर हो. A digit is not allowed as in the first place. अगर हम कहें ABC5 नाम का वेरिएबल बनाया है, then this is correct. There's no problem with this. क्योंकि इसे हमारा जो आइडेंटिफायर का नाम है वो स्टार्ट अल्फाबेट से हो रहा है, बाद में आप डिजिट दे सकते हो, but you cannot give the digit at the first place. So this is rule number 1. Now the second rule says it must consist only of letters, digits और अंडरस्कोर्स. मतलब जो कैरेक्टर्स अलाउड है एक आइडेंटिफायर के नेम में, वो सिर्फ क्या है, कैपिटल A से Z, स्मॉल a से Z, 0 से 9 और स्पेशल कैरेक्टर में ओनली अंडरस्कोर. अंडरस्कोर साइन कौन सा होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था, ये. ठीक है, नॉट द माइनस साइन, अंडरस्कोर जो नीचे होता है आपका. ठीक, so only these characters are allowed while naming an identifier. Capital A से Z, small a से Z, 0 से 9 and special characters में only underscore is allowed. So that means if I write a variable name as AB asterisk, this is not a valid variable name. What is not valid here? ये asterisk का sign allowed नहीं होता है. Similarly, अगर हम कहें ABC question mark या ABC slash, all these are invalid names of variables. क्योंकि इसे सिर्फ ये तीन चीजें ही एक वेरिएबल नेम के अंदर अलाउड होती हैं. Alphabets, they can be lower or upper case, underscore and digits. Now, the third rule says only first 31 characters are significant. तो वेरिएबल का नाम आप मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स का रख सकते हो. उससे बड़ा अगर आप नाम रखोगे भी तो ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी केप्ट. नाउ 31 इज आल्सो नॉट अ वेरी स्मॉल से लिमिट, क्योंकि से 31 कैरेक्टर्स का से बड़ा वेरिएबल नेम आप रखना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा वो बेसिकली. So 31 characters long variable name is sufficient enough. मतलब कि जो वेरिएबल का नाम है, जैसे आप एक तरह से कह सकते हो, अगर आपका नाम कोई रखा गया है तो नाम कितना बड़ा होगा? It can be 10 characters long, 15 characters,
say 8 character or 20 character. So the limit here in C is you can name a variable or an identifier maximum of 31 characters. आप उससे बड़ा नाम रखोगे भी तो only the first 31 characters will be taken into significance, so बाकी सबको वो ignore कर देगा. So only the first 31 characters will be considered. So this is the next rule, the third rule. Then cannot use a keyword. अभी हम क्या बात कर रहे हैं, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर. ठीक है, तो पहला रूल क्या था कि फर्स्ट कैरेक्टर एक अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर. सेकेंड रूल था मस्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. थर्ड वाज द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 31 कैरेक्टर्स, नॉट बियॉन्ड दैट. फोर्थ इज इट कैन नॉट यूज अ कीवर्ड. मीन्स जो 32 कीवर्ड्स हमने सी में पढ़े अभी, ये जो आपके 32 कीवर्ड्स हैं आपके, इन क्योंकि से ये लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड हैं ये वर्ड्स, इन नाम के आप आइडेंटिफायर्स ऑफ कोर्स नहीं क्रिएट कर सकते. यू कांट नेम अ वेरिएबल हुज नेम इज ब्रेक. व्हाई? बिकॉज ब्रेक इज वन ऑफ द रिजर्व्ड कीवर्ड इन सी. So you cannot use any of these 32 keywords for naming an identifier, क्योंकि से वो नाम पहले से reserved हैं, उनको आप use नहीं कर सकते, वो language के अपने reserved words हैं. So you cannot name your variables or functions with those words. And last is must not contain white spaces. Means किसी एक variable का नाम टोटल मार्क्स अगर हमें रखना है तो हम ऐसा वेरिएबल नहीं लिख सकते. आई कैनॉट टेक द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर एज टोटल स्पेस एंड मार्क्स. यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज अ वाइट स्पेस. वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, सो दिस इज नॉट वैलिड. वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड. अगर आपको किसी वेरिएबल का नाम टोटल मार्क्स रखना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, what you can do is you can say total underscore marks. तो स्पेस की जगह आपने क्या किया, अंडरस्कोर लगा दिया. तो आपके दो, बेसिकली स्पेस क्या कर रहा था, स्पेस वाज जस्ट सेपरेटिंग द टू वर्ड्स. स्पेस का और कोई काम नहीं था, स्पेस बस क्या कर रहा था आपका, टोटल और मार्क्स. क्योंकि से अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ टोटल मार्क्स, जोड़ करके लिख देती हूँ वेरिएबल को ऐसे, तो रीड करते समय मेरे को प्रॉब्लम होगी, एकदम से मेरे को क्लियर नहीं होगा लिखा क्या है. ये इतना बड़ा सा वेरिएबल का नाम लगेगा, पता नहीं चलेगा कहाँ पे वर्ड्स आपके ब्रेक हो रहे हैं. ठीक है, सो इफ आई वांट टू राइट द नेम एज टोटल मार्क्स, व्हाट आई डू इज टोटल और मार्क्स के बीच में एक अंडरस्कोर लगा देंगे स्पेस की जगह. सो the two words will be separated with an underscore. So underscore का basically यही काम होता है जब कभी आपका दो या दो से ज्यादा words का keyword होता का identifier होता है, you can separate those words with an underscore. So these are the rules for naming an identifier in C. अब identifier से आप functions भी name कर सकते हो. They can be used for naming variables also. They can be used for naming constants also. They can be used for naming arrays also. और भी आगे हम चीजें पढ़ेंगे. So किसी भी चीज को एक नाम असाइन करने के लिए you need an identifier, और identifier के rules ये हैं. ठीक है. Now next is constants. As I told you, constants refers to fixed values. So they do not change their value throughout the program. Their values remain fixed. Now, constants can be of different types. You have an integer constant, and integer constant के भी अलग अलग types हैं, decimal integer, octal integer and hexadecimal integer. Now, ये number system पे based है. Decimal number system में आपकी 0 से 9 तक की digits होती हैं. So you have 10 digits in a decimal number system, 0 से लेके 9 तक. And this number system is known as decimal number system. जो मैथ में यूज करते हैं, that is the decimal number system. एक होता है octal number system. Octal means 8. तो उसमें सिर्फ 0 से 7 तक की डिजिट्स रिकॉग्नाइज होती हैं.
तो अगर आप देखोगे 0 से लेके 7 तक कितनी डिजिट्स बनती हैं? टोटल 8. So octal number system has a total of 8 different digits. So it only recognizes digits from 0 to 7, not 8. Then you have one more number system that is known as hexadecimal. Now hexadecimal stands for, hexadecimal का मतलब होता है 16. ठीक है, तो इसमें 0 से लेके 9, ये तो हो गए 10 डिजिट्स हो गए, और A से लेके F 6 हो गए. सो अ टोटल ऑफ 16 डिजिट्स, यानी कि 0 is 0, 1 is 1, सिमिलरली 9 is 9. 10 की जगह हो जाता है A, 11 की जगह हो जाता है B, एंड सिमिलरली F हो जाता है आपका 15. ठीक है, सो दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. बट लेकिन ये सारे किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स. नाउ decimal integers consist of set of digits from 0 to 9, and they can be positive as well as negative. Now you know very well कि integers positive भी हो सकते हैं, negative भी हो सकते हैं. These all are valid integers. Some of them are positive, some of them are negative. नाउ ऑक्टल नंबर्स की खासियत क्या होती है कि ऑक्टल नंबर भी इंटीजर्स की तरह होते हैं, सिंपल इंटीजर्स की तरह. डेसिमल इंटीजर्स, दे स्टार्ट विद अ 0. जब भी कोई नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 7 3 1, दिस इज एन ऑक्टल नंबर. ठीक है, लेकिन ऑक्टल नंबर में 7 के बियॉन्ड कोई डिजिट अलाउड नहीं होती है. So octal numbers allow only digits between 0 to 7. So 0 7 3 1 is a valid octal number. Yeah, octal constant. It starts with a 0. ठीक है, ये आपके हेक्साडेसिमल है. इनके बारे में हम और बाद में आगे डिटेल में कहीं आएगा तो बताएंगे. They start with 0x. 0x से स्टार्ट होने वाले जो भी नंबर्स होते हैं, they are hexadecimal numbers. तो ये हो गए सारे आपके न्यूमरिक कांस्टेंट्स. नाउ कांस्टेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो कांस्टेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, न्यूमरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट. न्यूमरिक कांस्टेंट मींस those that are made up of numbers, or character constants, those that are made up of characters, obviously. ठीक है, now numeric constants further are classified into integer constant and real constant. ठीक है, तो जैसे 750, this is an integer constant, integer value है ये. और 3.14 अगर हम बोले तो that is a real constant. Okay, now character constants can be divided into 2 types, single character constant and string constant. ना नाम से ही आपको पता चल रहा है, single character constant means they comprise of one single character, and single character constants are always enclosed in single quotes. Single quotes में they are enclosed within single quotes. तो अगर आप a को ऐसे लिख रहे हो, small a या capital A, only one character is enclosed within single quotes, then it is a single character constant. And strings are what? I've already told you what are strings. Strings are collection of characters. तो 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स मिलकर के स्ट्रिंग बनता है, and strings are always enclosed within double quotes. तो जैसे मैंने ये hello लिखा, तो hello is a string constant, whereas say x, this is a character constant. तो ये हो गए हमारे constant के types. Constants are of basically 2 types, numeric and character. Numeric constants further are of 2 types, integer constant and real constant.
Character constants are of two types: single character constant and string constants. Now, embedded spaces, commas, and non-digits characters are not permitted with between digits. So if I write 7,500 like this is not a proper constant because ये comma is not allowed in a number. Numeric constants के अंदर comma नहीं आ सकता है. Spaces are also not allowed. Special symbols like dollar are not allowed. Here spaces is not allowed. तो इनमें अगर आप देखो इसमें क्या गलती है, स्पेस है बीच में, so this is wrong. Here what is the problem? Comma not allowed. यहाँ डॉलर not allowed. ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स में, स्पेशली न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं. स्पेसेस नहीं अलाउ होती हैं, कॉमा नहीं अलाउ होता है. यू कैन ओनली पुट डिजिट्स and their types. Now we'll see the program later on because abhi wo aapko ekdam clear nahi hoga. So we'll first see the theory part, then only we'll write some other programs. Now real constants जो मैंने बताया था आपको, real integer numbers सिर्फ क्या hold कर सकते हैं? They can hold only values जिनमें आपका fractional part नहीं होता है ना. Now for numbers who have a fractional part also, suppose आपको किसी चीज की प्राइस बतानी है, it is say 17.5. so 17.5 में आपका यहाँ पे डेसिमल भी आ रहा है, डेसिमल के बाद 0.5 वैल्यू है. so such type of values are real constants. Now real constants again can be positive as well as negative. They all are valid. Now इसमें क्या होता है? Having a whole number followed by a decimal point and then the fractional part. ठीक है? And real numbers can be represented in two ways. इनको दो तरीके से लिखा जा सकता है. एक तो you can simply write it like in this form, and दूसरा you can write it in exponential form. जैसे आप लिख सकते हो say 3.0 and say e 5. इसका मतलब हुआ 3 into 10 to the power of 5. ठीक है, तो जो आप मैथ में भी करते थे एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो किसी नंबर को. सो यू कैन राइट इट लाइक दैट आल्सो. सो हियर इट्स गिवन हियर. नाउ अगर आप यहाँ पे ये 12e minus 2 का मतलब क्या हुआ? 12 into 10 to the power of minus 2. ये e के बाद -2 का मतलब पावर आपका 10 के रेज पे -2 है. और अगर यहाँ पे आपका ये है +5, so this means 1.5 into 10 to the power of 5. ठीक है, so both you can write. जब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है या बहुत छोटा नंबर होता है, you can use the exponent form for representing numbers that are either very large or very small in magnitude. ठीक है ना. अगर बहुत बड़ा नंबर है तो लिखने में बहुत लंबा हो रहा है, तो यू कैन यूज द एक्सपोनेंट फॉर्म टू मेक इट शॉर्ट. और या फिर बहुत छोटा नंबर है 0.0000015, तो उसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, ज्यादा बेटर रहेगा. छोटे नंबर्स को आप डायरेक्टली डायरेक्टली लिख सकते हो, नॉर्मल से डेसिमल नोटेशन में लिख सकते हो. ठीक है, सो टू नोटेशंस, डेसिमल एंड एक्सपोनेंशियल, मीन्स कि रियल कॉन्स्टेंट्स को आप दो फॉर्म्स में लिख सकते हो, दो तरह से लिख सकते हो. डेसिमल नोटेशन, दैट इज सपोज 3.142, दिस इज द डेसिमल नोटेशन. ठीक है, और दूसरा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन. तो ये किसके लिए यूज करते हैं हम? बहुत बड़े या छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो सपोज इफ आई वांट टू राइट 3.5 into 10 to the power of 9, so that can be written in form of an exponent. क्योंकि से अगर हम otherwise इसको लिखेंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, 3, 5 and 8 zeros. So this will be a very big number. So we can write it as 3.5 into 10 to the power of 9.
नाउ यू नो ये जो एक्सपोनेंट ई के जो पहले लिखा जाता है दैट इज नोन एज द मैंटिसा, एंड ई के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज रिटन एज दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंट. तो अगर आप इसमें देखते हो, दिस इज योर मैंटिसा एंड दिस इज योर एक्सपोनेंट. रेज टू द पावर ऑफ 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 आएगा. ठीक है, सो दिस विल बी 0.65 into 10 to the power of 4. Here this is the mantissa and this is the exponent. ठीक है. Now यहाँ पे आपका पूरा लिस्ट दिए है, कुछ कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, and here it is given whether they are valid or not. If they are valid, what type of values they represent, and if they are not valid, what is the reason. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, no, what is, why it is no, because comma is not allowed. ठीक है, comma is not allowed in numbers. This is valid, this is valid. Now this is wrong. What is wrong here? No white space is permitted. यहाँ पे आपको एक white space दिख रही है which is not allowed. White spaces नंबर के बीच में नहीं हो सकते हैं. ठीक है, then this is also wrong. Now what is wrong here? Exponent must be integer. You cannot write a number like, आप ऐसे नहीं लिख सकते. इसका मतलब ऐसा हुआ 1.5 into 10 to the power of 2.5. Doesn't make sense. तो power हमेशा क्या रहेगा? It should be an integer value. So this is wrong here. ये चीज क्या होनी चाहिए थी आपकी? Should be an integer. ठीक है, तो ये यहाँ पे 2.5 अलाउड नहीं है. देन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? डॉलर इज नॉट अलाउड एंड रेस्ट ऑल आर ओके. तो कभी 1 मार्कर क्वेश्चन में आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कोई एक कांस्टेंट दिया रहेगा या कोई वेरिएबल का नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा ये वैलिड है या नहीं है, और अगर वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं है. यू शुड बी नोइंग द रीजन व्हाई इट इज नॉट अलाउड टू मेंशन द रीजन लाइक दिस. क्या प्रॉब्लम है वो आपको बतानी पड़ेगी. ठीक है. नाउ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है. सिंगल कैरेक्टर्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोट एंड स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स. ठीक है. नाउ अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक चीज मेंशन्ड है. दिस यू शुड नो. सी में जो आपके कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन द दे आर नोन एज द एस्काई कैरेक्टर सेट. एस्काई कोड्स कहलाते हैं. तो every character in C has its associated ASCII code. ASCII code मतलब उससे एक एसोसिएटेड कोड उसको असाइन होता है. सो मींस कैपिटल ए का कोड है 65. यू कैन सी अ चार्ट. आप नेट पे डालोगे एस्काई कोड तो चार्ट, तो पूरा चार्ट आ जाएगा 0 से लेके 255 तक का आपके पूरे कैरेक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी. सो कैपिटल ए का कोड होता है 65. स्मॉल ए का कैरेक्टर स्मॉल ए का होता है 97 एंड सो ऑन. सो कैपिटल बी का हो जाएगा 66, स्मॉल बी का हो जाएगा 97, 98. ठीक है. इस तरह से हर कैरेक्टर को कीबोर्ड पे जितनी भी कीज आपको दिखती है, हर कैरेक्टर का अपना एक एसोसिएटेड एस्काई वैल्यू होती है. ठीक है. नाउ so if I want to print ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे because right now we have not learnt about this percentage D and percentage C, so you will not be in a position to understand this right now, so we'll discuss this later. इसके बाद हम पढ़ते हैं next variables. This also we'll discuss later. ठीक है. So just we'll discuss this later because अभी हमें एक छोटा
छोटा सा प्रोग्राम और लिख करके देखना है. सो वी नीड टू लर्न अबाउट वेरिएबल्स. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर. I'm just writing it here so that we'll just remember कि ये चीजें हमें आगे डिस्कस करनी है. Okay, so we'll come directly to variables because ये चीज अभी हम बाद में करेंगे because ये अभी आपको नहीं क्लियर होंगी. इसमें से ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ न्यू लाइन कैरेक्टर. ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे पुश करता है. ठीक, इसके अलावा भी और कई सारे कैरेक्टर कांस्टेंट्स, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स यूज होते हैं. उनका सबका अलग अलग यूज है. वील डिस्कस देम लेटर. सो राइट नाउ यू आर ओनली अवेयर अबाउट दिस बैकस्लैश n which is used to put a new line character, yeah, to force the contents to be printed on the next line. Now next is variables. A variable is a data name that may be used to store a value in it. Now, this is very important. क्योंकि से कभी भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम्स में कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी हमें. वी नीड टू होल्ड सम वैल्यूज, और वैल्यूज को होल्ड करने के लिए वी नीड सम वेरिएबल्स. ठीक है, ये वेरिएबल बिल्कुल वैसे ही हैं जो हम मैथ में यूज करते हैं. एक्स वाई जेड ए बी सी, दे आर सेम वेरिएबल्स. एंड वेरिएबल्स की खासियत ये होती है कि दे कैन होल्ड वैल्यूज एंड देयर वैल्यू कैन चेंज विद टाइम. So, unlike constants, constants और variables में फर्क क्या होता है? Constants की value fix रहती है. It cannot change the value during the execution of the program, but a variable can change its value during the execution of the program. So this is the difference between a variable and a constant. Variable can change value, whereas a constant cannot change value. उसकी जो वैल्यू एक बार फिक्स कर दी तो वो ही रहेगी throughout the end of the program, whereas a variable can change its value from time to time. ठीक है, now variables को नाम देने के लिए जो identifier naming rules थे, the same rule apply for naming a variable, है ना. जो रूल्स हमने पढ़े थे वही सारे हैं. If you see here, these are known as the variable rules for naming variables. Rules for naming variables in C. ठीक है. Now, as mentioned earlier, variable names may consist of digits, letters, and underscore character only. Plus, ये सारे rules apply होते हैं. They must begin with a letter. Some systems permit underscore as the first character. First 31 characters ही allowed होते हैं. They shouldn't be greater than this. Upper case and lower case are significant, means case sensitive होती है C language. So total, total, and this total, all these three are different. All these three will be treated as three different variables because तीनों अलग तरीके से लिखे गए हैं. इसमें पूरा लोअर केस है, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, इसमें पूरा अपर केस में. So all these three will be treated as three different variables. It should not be a keyword. ये मैं पहले बता चुकी हूँ. आप कोई भी वेरिएबल का नाम ब्रेक, वाइल, फॉर, मतलब वो 32 कीवर्ड्स में से कोई भी एक नाम आप नहीं रख सकते हो बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिजर्व्ड keywords of C language, and white spaces are not allowed in a variable name. ठीक है, तो some examples of valid names are these. ये सारे valid names हैं क्योंकि इसमें as such ऐसा कोई भी चीज objectionable नहीं है. Everything is fine here in these variables. ठीक है. Now, अगर हम बात करें invalid variable names की, तो इनवैलिड वेरिएबल्स में क्या क्या आ जाते हैं. दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल बिकॉज इसमें कोई अल्फाबेट तो यूज ही नहीं हो रहा है एंड डिजिट्स ही डिजिट्स हैं. ठीक है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है. 25th इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल बिकॉज वेरिएबल का नाम शुरू होना चाहिए अल्फाबेट से.
You can write a variable with the name th25. This is valid. However, it is not making sense. लेकिन ये valid variable है. लेकिन 25th is not valid because it can't start with a digit. And this is also not a valid variable because special characters are not allowed. अगर allowed है कोई character special character में, that is only underscore. ठीक है, तो ये हो गए आपके वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स. नाउ यहाँ पे अगेन कौन से वैलिड कैरेक्टर्स, वैलिड नेम्स हैं वेरिएबल्स के, कौन से वैलिड नहीं है लिखे हुए हैं. नॉट वैलिड के आगे रीजन भी लिखा है व्हाई इट इज नॉट वैलिड. सो दिस इज वैलिड. द फर्स्ट वन इज ओके, नो प्रॉब्लम हियर. सेकंड इज नॉट वैलिड. व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? दिस इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड इन C. Char is a reserved keyword in C, so this is not allowed. Price dollar not allowed because dollar sign is not allowed. यहाँ पे क्या invalid है? Group 1 के बीच में spaces not allowed. Then this is a valid one. This is also valid because यहाँ int type. इंट भले ही आपका रिजर्व कीवर्ड है लेकिन आपका वेरिएबल का नाम क्या है? पूरा इंट अंडरस्कोर टाइप. सो दिस इज वैलिड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूरा वर्ड आपका इंट अंडरस्कोर टाइप है. देयर इज नो प्रॉब्लम हियर. सो दिस इज अबाउट हाउ टू नेम वेरिएबल्स. नाउ इसके बाद आपका होता है वेरिएबल डेटा के टाइप्स. ओके, नाउ डेटा टाइप्स आपके डेटा टाइप्स आपके क्या हो सकते हैं? दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड. ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे because it needs a full one class to explain the data types. So we'll discuss this in the next class. I'll just give you an overview of this. Data के भी अपने types हो सकते हैं. Data can be integer type. जितने भी टाइप के हमने अभी वो पढ़े कॉन्स्टेंट्स, तो डेटा भी उतने ही टाइप का, डेटा टाइप भी उतने ही तरह के हो सकते हैं. सो डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट फॉर रियल नंबर्स, इट कैन बी कैरेक्टर टाइप, इट कैन बी सो बेसिकली ये तीन तरह के ही होते हैं आपके. इंट, फ्लोट, वॉइड होता है. वॉइड हमने यूज किया है मेन के साथ. वॉइड डेटा टाइप्स मींस नथिंग. बताना होता है कि द डेटा टाइप इज नथिंग, सो वी मेंशन द डेटा टाइप एज वॉइड. int data type is used for storing integer numbers. Float data type is used for storing real numbers, for storing characters and strings. Int data type is used for storing integers and float is used for storing real numbers. So these are the basic data supported in C. मतलब डेटा अगर होगा तो इनमें से किसी एक टाइप का होगा. Then you have variations of these data types also. Like इंटीजर का एक वेरिएशन होता है, एक तो इंट होता है और एक होता है लॉन्ग इंट. अगर आपका नंबर छोटा है यू कैन यूज इंट डेटा टाइप एंड लॉन्ग इंट इज यूज फॉर स्टोरिंग बड़े इंटीजर को स्टोर करने के लिए लॉन्ग इंटीजर यूज करना होता है आपको. सिमिलरली फ्लोट का एक वेरिएंट है डबल. रियल नंबर स्टोर करना है तो आपके पास दो डेटा डिक्लेयर करोगे या फिर डबल टाइप. नाउ इफ द नंबर इज स्मॉल 3.14, फ्लोट से ही काम चल जाएगा. पर अगर बहुत बड़ा या बहुत ही छोटी कोई वैल्यू है, बहुत हाई प्रिसिशन की वैल्यू है, साइंटिफिक वैल्यू है कोई, देन यू हैव टू यूज द डबल डेटा टाइप
क्योंकि इसे फ्लोट का प्रिसिशन सिर्फ 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल होता है, 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल ओनली. The precision is 6 places after decimal only in float. So if you need a value to be stored with a higher precision, आपको कोई नंबर स्टोर करना है 1.53978249, अब यहाँ 6 से तो ज्यादा ही आपकी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, then you have to go for the ठीक है. So in all you have now so many different data types. You have char, you have int, you have float, long, double, and एक आपका void. So these are the different data types that are available in C. This is used for storing characters and strings. This and this is used for storing integers. Float and double are used for storing real numbers. Now, यहाँ पे आपकी ये रेंज दी हुई है डेटा टाइप्स और उनकी रेंज कि कौन सा डेटा टाइप कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज अलाउ करता है उसके अंदर. सो कैरेक्टर की रेंज होती है -120. नाउ सी, यहाँ पे एक कॉलम हम और बना सकते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स. अब कभी भी सी यू नो वेयर द वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. आप होगा कि देयर इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. जो भी आप डेटा स्टोर करते हो टेम्पररली वो आपकी रैम में स्टोर होता है. ठीक है, दो तरह की आपकी स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सेकेंडरी स्टोरेज में आप आपका हार्ड डिस्क आ जाती है या पेन ड्राइव आ जाती है या सीडी आती है. ऑल दीज आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आप डेटा फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखते हो. ठीक है, लेकिन प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए डेटा को सिर्फ प्राइमरी मेमोरी से ही पिक करता है. So whenever you need to do some calculations on some numbers, you need to store them in a variable. और variable कितनी bytes consume करेगा, कितनी space consume करेगा memory की, that is given here. So characters are usually allotted 1 byte of memory. Integers are allotted 2, float are allotted 4, and double are allotted 8 bytes of memory. Now, again, this is not fixed. It can depend. It depends on the machine, है ना. जैसे आप 32 बिट या 64 बिट मशीन पे जब आप C++ में काम करोगे तो integer can be of 4 bytes instead of 2. But we are talking about a 16 bit machine. तो DOS based मशीन की बात कर रहे हैं हम. वहां पे कैरेक्टर्स को 1 बाइट अलॉट होते थे, इंटीजर्स को 2, फ्लोट को 4 एंड डबल को 8. And 2 of them are missing here. One of them is missing here. long को भी 4 bytes अलॉट होते हैं. ठीक है, और ये यहाँ इनकी रेंजेस दी हुई हैं. सो अगर आपका इंटीजर इस रेंज में लाया कर रहा है -32,768 से लेके 32,767 के बीच में अगर कोई नंबर लाया कर रहा है, then you can store it in an integer type variable. पर अगर आपका नंबर इससे बड़ा है, then you have to define the variable of long type. ठीक है, तो सपोज आपको किसी पर्सन की एज स्टोर करनी है तो एज के लिए इंटीजर इज सफिशिएंट. बट अगर आपको you want to store the say salary of a person, then the salary of a person has to be taken of long type because salary can exceed this figure. 32,767 से बड़ी हो सकती है salary. So you have to take a variable which can fit in all types of values in it. मतलब all types नहीं, a wide range of values in it. ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ वैल्यूज वो सपोर्ट ही ना कर पाए. सो यू हैव टू सिलेक्ट अ डेटा टाइप अकॉर्डिंगली. नाउ कुछ लैंग्वेजेस में
इंट के तीन वेरिएशंस होते हैं. इंट लाइज इन द मिडिल. एक लॉन्ग इंट होता है और एक शॉर्ट इंट होता है. Like in Java language, short int is allotted 1 byte, int is allotted 2 byte, and long is allotted 4 byte. ठीक है. So there are variations. अलग अलग वेरिएंट्स हैं. अगर आपको बहुत छोटा नंबर स्टोर करना है, बड़ा नंबर स्टोर करना है, या बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, सो यू कैन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इंटीजर ऑल्सो. ठीक है. लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी. इट विल नॉट सपोर्ट डेसिमल वैल्यूज इन इट. So I'll end today's lecture here, and then we'll continue in the next class with the same topic, that is data types, because अभी इसमें काफी सारा रहता है. You need to learn all the different data types. अभी हमने इंटीजर डेटा टाइप पढ़ा, देन लॉन्ग पढ़ेंगे, फिर उनको हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे. द बेसिक एम इज हाउ यू विल यूज these variables and these data types in your program. So that we learn in the next lecture. So I'll just end the meeting for now. Please go through whatever has been taught in this lecture in detail.